Okay, let me start. Let me restart. See, what we are trying to cover here is the wind energy, the biomass, where there is a solid waste um, which is used, particularly for example, cow dung, and then the the wood-based plants, which are specifically from the the dried dead wood waste plants are there. The non-fossil fuels cogeneration, particularly in sugar industry, we are having bagasse-based power plants, small hydro up to 25 megawatt plants, which are allowed, which are covered under small hydro projects as renewable. Municipal solid waste or refuse derived waste, municipal solid waste which is coming from our homes. These solid waste is converted into energy, and that energy is used to generate power. This is a very recent phenomenon in the country, and we have very small capacity as on date. In solar, we have photovoltaic, thermal, floating. There are certain power projects which have been set up, which are floating on the water, and so that the land availability wherever there is shortage, so these projects can be used, they have twin benefits. Then there biomass I've already covered. Then there is biogas and hybrid projects like solar, including solar and wind, because in wind farms, the windmills are placed at a different location. They're at different places. For example, if there is around 50-meter difference between one windmill and another windmill, then the space is vacant. That space is used for putting up solar projects, solar farms, so that a combined or a hybrid model is generated, which is more cost effective. Just to give you the brief how presently the renewable energy is there, we have something like 89,000 megawatt installed, out of which wind presently is having the highest share of 38,000 megawatt, solar is 36,000 megawatt, biogas generation, sorry, biogas generation, small hydro projects of 4,740 megawatts, and waste to energy, as I was telling, only 169 megawatt is available. And why I am highlighting this, see, there is a very good scope of waste to energy, where a lot of municipal waste can be converted into energy. Though presently the technology is very costly, the tariffs are high, but going forward, we hope that things will fall in place like solar, and it will be very, very cost effective. A very unique thing in this case is in case of, if we see on the right side, the pie chart, private sector is having 85,000, almost 95%, 90% of the capacity is owned by private sector, whereas the state government is owning only 2,381, and central utilities like NTPC, NHPC, etc., they are having only 1,632 megawatt of the capacity as on September 30th. So that way, we see that private sector is very upbeat on the renewable energy, because they hope to get better yields on that. There is some commitment of buying renewable energy. They have to be bundled with the thermal power project, so that thermal power, conventional power, so that the average cost comes down, and there is obligation of renewable energy on the distribution companies as well. So they have to comply with that regulation. That's why it is the private sector is very high on this renewable energy. If we see the development in 1990, the renewable energy was just 18 megawatt,
In 85, it was 0 megawatt. Started in the seventh plan, 5-year plan, where from 85 to 90. In 1990, it was 18 megawatt, and today it is 89,000 over 89, a CAGR of over 31%. Conventional sources, if we see, they have grown over a period of these 30 years at 5.03%, whereas overall energy increases with a CAGR of 5.97. Again, I'm just trying to give the perspective before actually delving into the subject. Now coming to the, it's a very small class. Let me be very frank. You have to hear me out. You have to understand and put more questions on that. If we see how, what are the benchmarks that CERC has given for different types of projects. It is set up of a norm of a debt equity ratio of 70-30. It means if the debt is less than 70%, then the normative debt of 70% will be considered and normative equity of 30% will be considered. But if the debt is more than 70%, then actual debt will be considered. We have to understand the logic behind it. The logic is that return on equity has to be paid by the developer or by the buyer or the customer for the entire life of the project. Whereas debt will be repaid over a period of time, and the cost of debt, then it will be reduced. To that extent, the tariff will be reduced over a period of time. Whereas when we discuss the life of the project, we'll discuss it later, but normally the life of a project is 25 years, except for small hydro, which is 40 years. So if we see the debt equity, if the debt is high, then, if the debt is low, then the equity is high, and return on equity has continued to be paid over this period of time. That's why it has benchmarked that the debt equity ratio for the purpose of tariff will be more than 70-30. It means the debt has to be more than equal to 70% of the total project cost. Secondly, it has also benchmarked the interest on term loan. Interest on term loan, it says 1 year SBI MCLR for the past 6 months before the commissioning and plus 200 basis points. It means if 1 year MCLR presently is around 7.5%, the interest rate on term loan will be allowed at 9.5%. This is very important while assessing a project. That while computing the tariffs, normally the electricity regulatory commissions of the state or the center, they will be considering this type of interest in the tariff. If there is the cost of funds is more than this, then it will be coming out of the return on equity indirectly from the pocket of the promoters. Another important aspect that it says is depreciation will be, the asset will be depreciated over 15 years. Initially at the rate of 4.67%. Basically, if we see, it comes 70% of the debt, whatever debt you are taking, you are getting it over 15 years, and balance depreciation will be over balanced project life. Now, this is considering a residual value of 10%. If a project is having a 100 crore project, then the residual value is 90 crores or 10%, 10 crores. The 90 crores has to be depreciated over the project life. 70% will be depreciated within 15 years, and then 20% will be depreciated over 10 years, or in the case of hydro projects, over 25 years. There is an objective to it. When we say loan, interest on loan or loan is to be paid, this depreciation is considered as the loan repayment. What the regulator does, or how the tariff is calculated, while calculating the tariff, the depreciation is reduced from the debt that we have taken,
And for the next year, the interest will be calculated on the remaining debt. That is very typical because you have already received this amount of depreciation in cash. So a promoter is expected to repay that to that amount, to that extent. And then the debt is calculated. It is assumed that over 15 years, the 70% debt will be repaid. And after 15 years, if there is there will be no debt and only return on equity and other expenses will be, other charges will be allowed as the part of capacity charge. So capacity charge is basically the fixed charge that is allowed. For example, in case of wind projects or in case of solar projects, there is no variable charge. There is no variable charge. There is no fuel which is to be used. Then practically the promoter gets the capacity charge itself. So it's a one-part tariff. Then there is a return on equity. The regulation allows a 14% post-tax return on equity. Now, post-tax means if a company is paying tax based on MAT, then it will be grossed up based on MAT. And if the company is paying tax on at regular tax rate, then it will be grossed up to the regular tax rate. So the tax is practically reimbursed. But in this case, this was up to recent, but when this regulation has come, this has added another dimension to this tax. Now, tax, they say that for 20 years, they will consider only MAT. Whatever MAT is there, based on that, it will be grossed up. And after 20 years, this regular tax rate will be applicable for grossing up. Then there is another cost for any power project is normal, this operation and maintenance cost, which is normative, which is I will discuss it in my later slide, how normative O&M cost is computed. And then there is another component of capacity charges, interest on working capital. Again, interest on working capital is calculated based on the fuel that you are required to keep, based on the debtors, based on the O&M expenses that you have to keep. So there are certain components of working capital which on which the interest is allowed. And in this case, again, it is SBI MCLR, 1 year MCLR plus 350 basis points. Is there any question on this? Now, here I'm covering the regulation, but it says that for wind power projects, the capital cost per megawatt will be as per market trend. Presently, the market trend is something like 5 to 6 crores per megawatt, and the life of the project is 25 years. In case of non-fossil fuel cogeneration, they have considered a project cost of 4.92 crores per megawatt, O&M cost of 24.52 lakhs per megawatt with a life of 25 years. Small hydro projects, they have considered a project cost of, depending upon the size of the project, because there can be less than 5 megawatt to 25 megawatt, about 78 lakhs per megawatt to 1 crore 10 lakhs per megawatt. And again, O&M costs, because of the silting, desilting, etc., is required. A lot of maintenance is required in small projects. 21.37 lakhs per megawatt to 41.78.
Municipal solid waste and refuse derived based projects. They say as per market trend. Now, why the market trend? Because there is still this source of power is at a very nascent stage. The benchmarking was not possible for the regular commission. In this case, as a assessor or as a consultant, we have to see a lot of factors. What should be the benchmark in this case, and how whether based on the computations of tariff components, as we discussed in my previous slide, whether it is making viable, the project is viable or not. But I will share that it is ranging from something like 18 crores per megawatt to 30 crores per megawatt, depending upon the technologies which is used and the advantages or the PLFs that you can derive from this. Can anybody tell why a power project with 30 crores per megawatt be accepted when there is a 5 crores or 4 crores crores per megawatt power project is being set up? Why anybody should accept a so costly power? So PLF high होता है. PLF फॉर एग्जांपल इन नॉन फ्यूल जनरेशन में आपके पास PLF 80% 85% तक PLF आ सकता है. बल्कि if I see, आप देखेंगे तो सॉलिड वेस्ट में बहुत बार PLF कम आता है, क्योंकि कई बार आपके पास जो वेस्ट है दैट इज नॉट ड्राइड. आपके पास जो वेस्ट आता है वो मिक्स्ड आता है, और मिक्स होने के केस में यदि वो ड्राइड नहीं है और थोड़ा भी उसमें मॉइस्चर ज़्यादा है तो the PLF goes down. You have to first dry up that waste, the fuel, and then you have to feed. और बताइए सर प्लीज. Okay, see, there is a social advantage to it. Why initially we started with solar projects at high cost of 14, 15 or 16 rupees per unit? Because at that time we thought that unless and until we start going into renewable, these conventional sources are polluting the environment, and it is important that we should try, though it is costly, but socially and overall economically, it is better to go for even the costlier generation. In this case, dumping waste requires is polluting. Second, it is also using costly land, and it is also pouring the environment, because if you see wherever there are dumps, there is if we go to from Delhi to Faridabad, Gurgaon to Faridabad, there is a waste land where the waste is dumped, and we can see the height of that hillock which has been created. And if we go about I think 4 or 5 years back, one of the dump yards collapsed, and it was very, very damaging. In Delhi it happened, and I think 5 or 6 people died in that mishap. Now, when we are using this municipal solid waste or refuse derived waste, then actually we are reducing our land requirement, because it becomes ash, and then ash can be used for the road or landfill. So that is where it's socially viable. That's why this sort of projects are being preferred by the government.
But again, as I told you, that still the country is having only 169 megawatts of power set up, and one of the prime developer is SL Utilities, which is having, I think, two projects. One is in Jabalpur, one is in Amritsar, and they're Siemens-based technology, and then they're doing well in these type of projects. Again, because of the quality of waste, they are one of the project is under stress. Coming to solar again, solar has this technology has come up very well. I will give you some details of this, but the market has developed over a period of time. One time the price, the tariff was something like 16 rupees per megawatt, which has come down to as low as 2 rupee 44 per megawatt in the recent times. And now the project cost is between 3 and 5 crores, which again I will discuss that. But the regulator says it will be market driven, because very important factor is that in this case, the Solar Energy Corporation of India calls for bid for the tariff, levelized tariff. Can you tell me what is levelized tariff? Can anybody tell me? Levelized tariff is basically the present value of the tariff that will be charged over a period of time. It is a discounted tariff. So that way, for example, if a developer charges high tariff initially and low tariff at the going forward, and another developer who is charging low tariff initially but high tariff going forward, then levelized tariff basically gives you a comparison whose tariff is better and whose tariff should be accepted in the bid. So if my IBC team can see whenever we are making an evaluation matrix, one is the NPV of the NPV of the cash flows. Similarly, the TEV team, whenever we are making a project report, we are checking whether the NPV is what is the NPV of a project which is coming. And this is nothing but the net present value of the tariff over the life of the project or over the bid period. So levelized tariff that way. So levelized tariff has come down significantly. The project cost has come down from. Sir, Hello? tariff तो same रहता है ना throughout the tenure of the project? No, it depends upon the bid. There are two ways of looking at it. One is I may say that initially I will be taking, for example, 3 rupees per unit, and after 10 years I will be charging 2 rupees or 2 rupee 10 paisa per unit. What we do is whenever it depends upon the bid, how the bid is being called and how the bid has been submitted. Because see, initially there is a debt repayment has to happen. Now, as I told you, if I have to repay the debt in 15 years, then there is an additional burden that has to come. And to make it a viable project, whenever we are making a TV study or whenever we are doing any restructuring, then a rating has to be done, and rating will see what is the DSCRs, what are the ratios which is coming, whether it can be covered or not. For that, the tariff has to be structured in a manner that over a period of time, the tariff may come down to ensure that the DSCRs are maintained. So need not be. Again, it depends how the developer or the project developer has bid. But normally you will find it is high in the initially and but low at a later stage. Sir, in the TV, we have seen few of the SECI projects. In all those projects, the tariff is same throughout the tenure. Normally, it should not be done.
सेकी वाले प्रोजेक्ट में सब में सेम एक ही तो कॉन्सेप्ट चलेगा सेकी के प्रोजेक्ट में? नहीं, यदि उस मैंने यही मैं बोल रहा हूँ कि बिड डॉक्यूमेंट कैसे बना हुआ है, आई हैव टू सी द बिड डॉक्यूमेंट। हो सकता है उन्होंने जो बिड मंगाया उन्होंने वो टैरिफ लिख दिया हो कि आपको अपना यू हैव टू बिड फॉर द लेवलाइज्ड टैरिफ, तो वो तो बिड लेवलाइज्ड टैरिफ पे ही मंगाएंगे ना, ओके विद डिस्काउंट रेट। तो आपके लिए वो एक सिंगल फिगर ही मंगाते हैं। ओके But if you see, as I told you, if we go to the previous slide, in this slide, if you see whenever there is a normative O&M cost, but there is an escalation clause of 3.84% per annum. Similarly, in case of fuel, the regulator defines what will be the escalation of the fuel cost. So in this case, if we see, the depreciation is 4.67% in the first year because I have to repay the loan. If I have to repay the loan, so I need more cash. So I will include the depreciation. Now, as I told you, it depends. If I am, for example, I am taking the benefit of accelerated depreciation, then to that extent, I may bid even for the lower tariff initially. But I'll have to see the bid document if whether it is, because if you are saying I can agree, but let me check and I will come back. Maybe by tomorrow I'll check and I will share with the team, entire team, how it works. But normally I'm finding I've seen a lot of bids where the सोलर में ये टैरिफ वेरिएशन आते हैं क्या? सोलर में आते हैं? किसी में भी, सब में आएंगे, जिसमें आपका जो भी टैरिफ होगा ना सर, उसमें वो वेरिएशन आएगा ही आएगा। Because as I told you, we need initially we need more cash. Because if we say a tariff of, for example, ₹2.44 per annum per unit, which is a levelized tariff, which is the bid last time. So if we backwork it, I don't think I will be able to get a DSCR of 1.2 or 1.3. एवरेज मतलब 3 to 4 करोड़ का अगर लें तो 2.44 पे तो वायबिलिटी नहीं आएगी। Exactly. तो मैं इसका मतलब कहीं ना कहीं यही मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको 3 to 4 crores पर ₹2.44 का बिड है। That is a bid which is when already been accepted by the SECI. सुनील सर, 2.44 की बिड कहाँ पे आई है सर? मतलब इतनी कम Sir, I will share you. Give me 2 minutes. I will, in the slide itself I have prepared. Okay. Rohan, you were asking something. सुनील सर, जी, बोलिए सर, अपना सेकी की जो बिडिंग है ना सर, उसमें अपनी कॉम्पिटिटिव बिडिंग होती है टैरिफ के ऊपर जी। तो जो अपनी कॉस्ट है वो अपनी आईपीपी प्लेयर्स के हिसाब से वो अपनी डिसाइड करते हैं, बट जो बिडिंग जो टैरिफ की बिडिंग है वो अपने हिसाब से कॉम्पिटिटिव बिडिंग करते हैं, तभी अपने जो टैरिफ है ना वो फिक्स होता है। 15 साल का पीपी जो साइन होता है अपना सेकी के साथ, तो वो टैरिफ ठीक मेरा है फिक्स हो आप, जाता है। मैं यही आपको बता रहा हूँ कि उसके बाद सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग इट है कि सेकी उसको बिडिंग करवा के टैरिफ फिक्स करता है, बट वो जो टैरिफ होता है वो होता है लेवलाइज्ड टैरिफ ऑफ दैट इज नॉट द एनुअल टैरिफ व्हिच विल बी चार्ज। एनुअल टैरिफ उसके नीचे जब आप बिड का पूरा डॉक्यूमेंट देखेंगे, मेरे हिसाब से आई हैव नॉट सीन द डॉक्यूमेंट, बट इफ नॉर्मली इफ यू सी कि वो ईयरली टैरिफ आपको बताना पड़ता है, and then you have to give the levelized tariff for the bidding purpose, so that it is comparative. You are able to compare whose tariff is most competitive. सर ठीक है, दैट्स फाइन सर, बट सेकी के जो डॉक्यूमेंट्स हमने देखे हैं ना सर, उसमें अपना टैरिफ अपने को 15 साल के लिए फिक्स हो जाता है। कई बार ये भी होता है कि 10 साल के लिए एक टैरिफ और 10 साल के बाद मेरा 5 साल के लिए टैरिफ, तो अलग अलग वेरिएशंस आती रहती है सेकी के बिड डॉक्यूमेंट्स में। मैं यही बोल रहा हूँ, देख लेता हूँ मैं, मतलब नॉर्मली मैंने आपको बताया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उसमें भी जब आप कह रहे हैं कि 10 साल का एक और 5 साल का एक होगा, तब भी उसका भी लेवलाइज्ड टैरिफ उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसमें कोई एस्केलेशन फैक्टर दिया है या नहीं दिया है? नहीं, ये लेवलाइज्ड टैरिफ होता क्या है भैया? लेवलाइज्ड टैरिफ इज इन द डिस्काउंटेड टैरिफ ओवर द पीरियड ऑफ बिड और ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। तो वही मैटर करता होगा ना, कोई भी वही मैटर करता है। मैं खुद कह रहा हूँ कि फॉर द पर्पस ऑफ बिडिंग एक सिंगल फिगर ही मैटर करती है। तो वो
जो लिबरलाइज टैरिफ निकलता है वो हम क्या पैटर्न पे टैरिफ ईयर टू ईयर बेसिस में रखना चाहते हैं उसके हिसाब से निकलता होगा। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो वो तो हमारे ऊपर है क्या कि हम ईयर टू ईयर बेसिस में क्या टैरिफ लेना चाहते हैं। बिल्कुल, जब आप बिड करते हैं ना तो ईयर टू ईयर आप क्या टैरिफ लेना चाहते हैं वो आप डिफाइन कर देते हैं कि मैं फॉर एग्जांपल पहले साल में मैं एक 3 रुपए 10 पैसे ले रहा हूँ, दूसरे साल में 3 रुपए 5 पैसे ले रहा हूँ, तीसरे साल में तो इसका 3 रुपए मतलब ले। आप बोलना चाहते हैं कि 3 तरह का टैरिफ हो सकता है, एक इक्वल टैरिफ भी हो सकता है, एक डिक्रीजिंग ट्रेंड में भी हो सकता है, एक इंक्रीजिंग ट्रेंड में भी हो सकता है। हाँ मतलब ऑसिलेटिंग भी में हो सकता है, किसी भी ट्रेंड में हो सकता है। किसी भी ट्रेंड नॉर्मली में हो सकता डिक्रीजिंग है। ट्रेंड में, नॉर्मली डिक्रीजिंग ट्रेंड में होता है। उसका रीजन ये होता है कि आपको जो आप डेट लेते हैं उसको रीपेमेंट आप करना होता है, तो वो एक एडिशनल बर्डन रहता है। जैसे जैसे आप डेट रीपे करते रहते हैं आपका इंटरेस्ट नहीं तो बर्डन कम अगर होता अगर रहता है। डेट लेते हैं, अगर डेट लेते हैं तो रिपेमेंट करना होता है, तो हमारा तो बलूनिंग रहता है ना रिपेमेंट शेड्यूल। नहीं मैं यही बोल रहा हूँ, लेकिन उसके साथ इंटरेस्ट कॉस्ट भी तो बढ़ती है ना भैया। मतलब यदि तो आप आपकी बोलना चाहते हैं कि आप मेरा ओवरऑल ऑब्लिगेशन कम होता है डाउन द पीरियड ऑफ टाइम। नहीं, जैसे अब जब डेट रीपेमेंट हो गया उसके बाद आपका ऑब्लिगेशन नहीं रहा, कैश, आपको कैश की रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरा ओवरऑल ऑब्लिगेशन तो बढ़ता ही रहता है ना, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट कम हो रहा है, मेरा रिपेमेंट ज्यादा होता रहता है। नहीं मैं आपने जब रीपेमेंट हो गया 15 साल में, जैसे मैंने बताया था कि इसमें 15 साल में रीपेमेंट नॉर्मली अज्यूम करा जाता है, ठीक है ना। आप हो सकता है आपके पास 20 साल का लोन हो, तो आपने क्या करा, ऑटोमेटिकली आपका का जो ऑब्लिगेशन है वो स्प्रेड हो गया ओवर 20 ईयर्स, हाँ ठीक है ना। और देन यू कैन, एज एज यू आर राइटली सेड कि आपने जो लोन लिया, मान लीजिए वो वर्ल्ड बैंक से लोन मिल रहा है या यूएस एक्सिम से लोन मिल रहा है, जो 20 साल का लोन आराम से आपको मिल जाएगा। दे में बलून इट, दे में स्ट्रक्चर इन अ मैनर कि जो आपको आपके कैश फ्लो से मैच कर जाए। तो आप डेफिनेटली एक लेवलाइज टैरिफ, जो एक टैरिफ भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं उससे, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द कैश रिक्वायरमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर दैट यू हैव, योर व्हाट इज योर ऑब्लिगेशंस। दूसरा तो ये है इस कि आपको हमको ये देखना है कि वेदर आई विल बी एबल टू मीट द रेटिंग रिक्वायरमेंट्स, और वेन एवर आई एम गोइंग फॉर अ रेटिंग, और इट हैज एडिक्वेट कवरेज। तो इसमें टैरिफ का वेरिएबल और फिक्स दोनों हो सकता है क्या। देखिए दो चीजों में है, जैसे आपके नॉन फॉसिल फ्यूल में फिक्स और वेरिएबल दो तरह का होता है। विंड में और सोलर में नहीं होता। विंड किसमें होता सोलर है। और विंड सोलर का हाइब्रिड है उसमें, क्योंकि वन पार्ट टैरिफ है, फिक्स चार्जेस ही है, उसमें वेरिएबल नहीं होता, कुछ फ्यूल चार्ज नहीं होता। बट फिक्स और वेरिएबल का से मेरे को समझना है कि मैं उसमें भी ये होता है। मैं आपको बता देता हूँ कि आप देयर इज कैपेसिटी चार्ज, वेरिएबल कैपेसिटी चार्ज एंड फिक्स्ड कैपेसिटी चार्ज, इस तरह का भी टैरिफ आता है। तो वंस यू आर ये क्या, बिडिंग, ये फिक्स और वेरिएबल का ही कैटेगरी में फॉल करता है क्या। मतलब फिक्स्ड और वेरिएबल की कैटेगरी में फिक्स करता है, लेकिन अगेन मैंने एज आई टोल्ड यू, वन इज फ्यूल चार्ज एंड सेकंड इज द कैपेसिटी चार्ज। तो कैपेसिटी चार्ज में फिक्स एंड वेरिएबल है। तो फ्यूल चार्ज मतलब नलीफा वो कंपनसेट कर देता है। फ्यूल चार्ज एक और चीज है, जैसे फ्यूल जिसमें आपका फॉसिल फ्यूल है या बायोमास है, आपका वही मैं बोल रहा हूँ, म्यूनिसिपल वेस्ट फ्यूल वाला चार्ज है। मैंने फ्यूल चार्ज वो बोलते हैं ना पास थ्रू हो गया। हाँ फ्यूल चार्ज नॉर्मली पास थ्रू कर देते हैं। अगेन उसमें भी कंडीशंस होती हैं कि आपका इतना आपका स्टेशन हीट रेट इससे ज्यादा नहीं हो, इससे कम नहीं होना चाहिए। यदि उससे कम है तो यू आर इनएफिशिएंट, देन द लॉस इज टू बी बोर्न बाय द डेवलपर। तो ये नॉर्मली ये जो रिन्यूएबल आप सेक्टर की बात कर रहे हैं इसमें प्रोजेक्ट आईआरआर क्या होता है। प्रोजेक्ट आईआरआर भैया मेरे हिसाब, मतलब मैंने कैलकुलेट नहीं किया, बट समथिंग लाइक प्रोजेक्ट आईआरआर आएगा इसका 12% से 13%। तो ये कैसे सस्टेनेबल होता है जब कॉस्ट ऑफ द फंड मेरा उससे ज्यादा हो तो। नहीं मैं बताया ना आपको कि यही, जैसा भी आपको दिया कि वो कॉस्ट ऑफ फंड, यहाँ पर देखिए ना, कॉस्ट ऑफ फंड को वो लेते हैं कि एमसीएलआर, एसबीआई एमसीएलआर प्लस 200 बेसिस पॉइंट इफ वी सी विच विल बी अराउंड। तो मतलब आप बोलना चाहते हैं कि सारे पावर प्रोजेक्ट 10-11% में ही वाइबल होंगे, उसके ऊपर वाइबल नहीं होते हैं। नहीं वाइबल, मतलब वाइबल का मतलब यही है कि मैं अभी मेरे को देखिए ना 70% पे मेरे को ये रेट मिलेगा, 9.5%, 10% का रेट मिलेगा। बाकी के ऊपर, बाकी जो है मेरे को 14% का, 30% के ऊपर करीब करीब 14-14.5% का रेट मेरे को रिटर्न मिल जाता है। तो ब्लेंडेड कितना आ जाता है। ब्लेंडेड 11.5-12% आ जाएगा। तो दैट इज इक्विवेलेंट टू योर आईआरआर। तो यही मैं बोल रहा हूँ ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। कोई भी डेवलपर प्रोजेक्ट क्यों बैठाएगा। 14% उसको पोस्ट टैक्स रिटर्न मिल रहा है, उसको क्यों नहीं बैठा देगा।
नहीं IRR आप बोले ना 12% आता है। हाँ तो भैया मैं यही तो बोल रहा हूँ, ब्लेंडेड जब आप कह रहे हैं तो रिटर्न ऑन इक्विटी आ रहा है ना 14% का। दूसरा इसके ऊपर जो भी यदि आपने कोई भी एफिशिएंसी लाए, उस एफिशिएंसी का गेन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे अब आपके पास, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो O&M कॉस्ट है वो 24 लाख रुपए 25 लाख रुपए का आपको अलाउ करा है विद एस्केलेशन फैक्टर। अब आप यदि उसमें 24 लाख की जगह आप 18 लाख रुपए 20 लाख रुपए में ऑपरेशन करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं उसका, यू आर सेविंग ऑन दैट इज अलाउड। नहीं मैं वो घर ले जा सकता हूँ क्या? बिल्कुल वो घर लेके जा सकते हैं। 2-5 लाख रुपया? नहीं 2-5 लाख रुपए पर मेगावाट है भैया। अच्छा। तो 100 इसमें EBITDA मेगावाट तो अच्छा 100 ही आता है मेगावाट का renewable है में। तो 24 करोड़ रुपए हो गए। 24 करोड़ का मतलब 5-6 करोड़ रुपए बन गए। तो यहाँ पर तो मतलब अगर तो अच्छा, तो यहाँ पर मेगावाट कॉस्ट क्या आता है रिन्यूएबल में? रिन्यूएबल में पर मेगावाट कॉस्ट मैंने जैसे आपको बताया, विंड का करीब 5 से 6 करोड़ रुपए पर मेगावाट आता ये है। कैसे पता चला? ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जैसे मैंने बताया, ये अब डेवलप हो गया है अब मार्केट। तो जो अभी रिसेंटली जो प्रोजेक्ट्स लगे हैं उनका मैंने किसी से कलेक्ट करवाया था डाटा। तो ये मैंने एक्सपीरियंस से पता चला क्या? हाँ, क्योंकि अब पहले क्या था कि उससे पहले विंड वाले में ये सारे प्रोजेक्ट्स का CERC एक बेंचमार्क देता था। रिसेंटली जो रिसेंट रेगुलेशन आया उसमें उन्होंने विंड का और सोलर का लिख दिया है एज पर मार्केट ट्रेंड, क्योंकि वो कहते हैं कि अब मैच्योर हो गई है मार्केट, हमको मार्केट ये सब डेवलप करने की अब जरूरत नहीं है हमको। आप मार्केट ट्रेंड से डिफरेंट होगा तो हम कम टू अस। तो ये क्या As far as municipal waste is concerned, sorry, MNRE भी कुछ करता था क्या पर मेगावाट कॉस्ट? MNRE मेरे हिसाब से पर मेगावाट कॉस्ट नहीं रेगुलेट करता था, लेकिन ये था कि वो टेक्नोलॉजीज के ऊपर सब्सिडीज और रिसर्च के ऊपर ज्यादा सपोर्ट करता था। सब्सिडीज देने की राह में बताता था कि कहाँ पे सब्सिडी दी जा सकती है। दे वर मोर इनटू पॉलिसी एंड सब्सिडीज। अच्छा, तो मतलब आज के दिन में पर मेगावाट कॉस्ट इज अ वेरी सब्जेक्टिव मैटर and it can be negotiated also, it is not defined anywhere. नहीं सब्जेक्टिव नहीं है। जैसे अब आपका सोलर का है, सोलर का पर मेगावाट कॉस्ट नहीं आ रहा है। बेसिकली क्या उन्होंने करा है कि बिड मंगाने लगे हैं। अब जब आप बिड मंगाते हैं तो जो मोस्ट एफिशिएंट बिड है उस पर कैलकुलेट कर लेते हैं, वहां से डेराइव की जा सकती है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट व्हिच इज कमिंग। नहीं मैं तो बैंकिंग पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ कि आज मैं कोई हाँ, प्रपोजल बैंकिंग लेके पर्सपेक्टिव गया से तो भी वहां पर पर मेगावाट कॉस्ट वो कैसे पता लगेगा कि वो मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है गलत है? मैं वही बता रहा हूँ बैंक वाला आप कैसे जब पता लगाएगा? प्रोजेक्ट मैं भैया भैया ऐसे पता लगेगा। जो अभी मान लीजिए मेरे पे 3 रुपए का बिड आया हुआ है रिसेंटली, तो आप बैक वर्क कर सकते हैं विद द वेरियस पैरामीटर्स कि इसमें कितना कॉस्ट आना चाहिए टू मेक इट अ वाइबल। how tariff will determine the per megawatt cost? पार्डन मी, how tariff will determine the per सोलर के megawatt? आपको भैया सोलर का प्रोजेक्ट से आप यू कैन ऑलवेज बैक वर्क विद सर्टेन एजम्पशंस। अरे वो तो वायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर सकते हैं, मगर डिटरमाइन कैसे कर सकता है मेरा हार्डवेयर कॉस्ट है सब? नहीं अरे जब जिसने बिड करा उसने कुछ एज्यूम करा है ना, अरे मैं वो उसने तो तो वो एज्यूम पहले करके वो बोल दिया कि मेरा तो आठ नहीं करोड़ तो रुपए पर मेगावाट कॉस्ट आ रहा है। है वो बोलेगा तो मेरा 8 करोड़ रुपए दे 8 रहा। करोड़ पे भी 8 करोड़ पे भी वो बिड विन कर रहा है। तो आप क्या आप बोलना चाह रहे जितना मेगावाट कॉस्ट में मैं बिड रन कर रहा हूँ उतना ही बैंक को मानना नहीं चाहिए? बैंक का मानना नहीं चाहिए, लेकिन आप यही मैं आपको बोल रहा हूँ। आप यू आर सेइंग कि मार्केट इज इनएफिशिएंट। मार्केट में भी इनएफिशिएंट फॉर 1 or 2 केसेस। मार्केट कैन नॉट बी इनएफिशिएंट फॉर ऑल द केसेस। व्हाट मैं यू आर तो सेइंग कि भाई 8 रुपए पर हाँ मेगावाट पे 2 रुपए 44 पैसे टैरिफ नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? नहीं आ सकता, आप देख लीजिए। मेरे को एक चीज बताइए, टैरिफ ये 2 रुपए 40 पैसा जो हो रहा है ये कैसे कैसे वायबिलिटी बैठती है इसमें? पहले जब 7-7 रुपए में वायबिलिटी नहीं बैठ रही थी, अब ये 2.5 रुपए में वायबिलिटी बैठा रहे हैं डेवलपर कैसे? पहले भैया 18 रुपए पर मेगावाट की कॉस्ट आती थी। 18 करोड़ रुपए पर मेगावाट। इट्स अबाउट पर मेगावाट कॉस्ट और इट अबाउट लोड फैक्टर? नहीं, दोनों चीजें हैं। लोड फैक्टर इसमें चेंज नहीं हुआ है। जैसे विंड में लोड फैक्टर बहुत चेंज हो गया है। लोड फैक्टर पहले 20% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आता था या PLF आता था, विच हैज गॉन टू 30% नाउ बिकॉज ऑफ द एफिशिएंट विंड मिल्स।
क्योंकि मैं कुछ डेवलपर से मिला था, उनसे जी। मैंने सेम क्वेश्चन किया था। उनका परसेप्शन ये था कि सुदर्शन पहले जो मेरा पर मेगावाट कॉस्ट भी हाई था और मेरा पर पावर लोड फैक्टर भी बहुत कम था। अब का जो अभी जो माल आ रहा है चाइना से या और कहीं दूसरी जगह से, उसमें क्या आ रहा है कि पर मेगावाट भी मेरा कम हो रहा है और मेरा पावर लोड फैक्टर भी बहुत ज्यादा आ रहा है उसमें। ये जहाँ तक मेरी जानकारी है, जितनी मैंने पढ़ा और या मैंने समझा है, आपका जो PLF है वो 16 से 19% है, तो 19% भी डेफिनेटली 3% का इम्पैक्ट ओवर 16% इज क्वाइट हाई। क्योंकि मैंने ऐसे प्रपोजल देखे यहाँ पे 35-40% भी पावर लोड फैक्टर है सोलर और में, सोलर या विंड में हो सकता है क्या? विंड में तो 30-35% तक आ सकता है। अच्छा, तो सोलर में 25% तक देखा हुआ मेरा। मैंने 19-21 तक तो 21 तक का तो मैंने पढ़े हैं, बट आई हैव नॉट सीन के किसी का कंसिस्टेंटली आएगा। उसका बहुत सारे रीजन है, प्रोजेक्ट आपने देखे होंगे। अच्छा, होगा क्योंकि 2 रीजन है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसकी जब यदि आपको हाई PLF लेना पड़ता है तो उसकी मेंटेनेंस बढ़ जाती है बहुत ज्यादा। आपको अच्छा। डस्ट रेगुलरली हटानी पड़ती है उसके ऊपर से, जो पैनल्स हैं उसके ऊपर से, तो मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है उसकी। तो अपने को यहाँ पर फोरम में सबको ये क्लियर है क्या कि रिन्यूएबल एनर्जी मतलब क्या होता है? रिन्यूएबल एनर्जी मैंने शुरू में ही सबको पता है? पता है क्या सबको? अर्चू अर्चू से पूछिए रिन्यूएबल एनर्जी मतलब क्या होता है? अर्चू, Sir, renewable energy, I think, is the energy that is collected from renewable sources. नहीं, कौन अर्चू बोल रही है क्या? नहीं, ये ऋतु बोल रही है मैम सर। बोलेंगे। अरे ऋतु जी, अर्चू को बोलने। अर्चू है वहां पर? हेलो अर्चू, रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है? सर, मुझे नहीं पता। क्यों? मेरा आपको पहला क्वेश्चन सबसे पहले नहीं करना चाहिए था, व्हाट आई एम कवरिंग। ये तो बहुत बड़ा मतलब चीज है। मतलब आदमी लॉगिन होके भी रिन्यूएबल एनर्जी का वो चल रहा है, 1 घंटा हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में पता नहीं है। क्यों नहीं पता अर्चू? सॉरी सर। आशुतोष है क्या यहाँ पर? जया जी हैं? सुनील भैया, जया जी से पूछिए रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है? सर, रिन्यूएबल एनर्जी वो होती है जहाँ पे हम उस एनर्जी को रिन्यू कर सकते हैं। जैसे कि सोलर भी हमारा रिन्यूएबल एनर्जी में आता है, थर्मल भी आता है, जिसको रिप्रोड्यूस मतलब उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, दोबारा रिन्यू कर सकते हैं उस एनर्जी को। जैसे थर्मल एनर्जी। हाँ, थर्मल पावर एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी है। सॉरी, थर्मल पावर एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी है। थर्मल सर, थर्मल रिन्यूएबल में नहीं आएगा सर, सोलर आएगा रिन्यूएबल में। क्यों नहीं आएगा थर्मल? थर्मल में तो हम पावर सेक्टर तो हमारे 3 टाइप के हो रहे हैं, विंड, थर्मल एंड सोलर। अरे मैडम, थर्मल क्यों नहीं आएगा रिन्यूएबल में? So there is a connection problem. आप ऑडिबल हैं। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। सुनील जी, आप बता दीजिए। आप बोलिए इनको कि थर्मल क्यों नहीं आएगा, पूछिए इनसे। मैं सुरेशन जी आस्किंग इसके मतलब थर्मल आपके हिसाब से व्हाई इट इज नॉट अ रिन्यूएबल थिंग? Sir, can I give the answer? एक बार जया जी को ट्राई करने दीजिए, नहीं तो आपसे पूछेंगे। जया जी बताइए, थर्मल पावर क्यों नहीं है रिन्यूअल? सर, इसका तो नहीं पता मुझे। रिन्यूअल में आएगा सर, वो भी थर्मल भी आएगा।
जय जी, आप लोग को अगर कोई क्वेश्चन कोई दिमाग में आता है क्वेश्चन, तो आप लोग क्यों नहीं क्लेरिफाई करते हैं ये यहाँ पर? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं आया था क्या कि थर्मल रिन्यूअल में आएगा? कि कंफ्यूजन जो भी होता है क्यों नहीं क्लेरिफाई होता है यहाँ पर? द बेसिक पर्पस ऑफ दिस सेशन मतलब डिफीट हो रहा है। हम लोग को इंटरैक्टिव सेशन बनाना चाहिए ना इसको, जिससे कि जितनी भी हमारी मन में दिमाग में जो भी क्वेरीज है, इररेस्पेक्टिव वो स्टूपिड क्वेरीज क्यों ना हो, उसको रिजॉल्व किया जाए। हम नहीं, दूसरी बात, स्टूपिड स्टूपिड हो सकता है, आप सोच रहे हो स्टूपिड है, बट दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर अदर्स एज वेल। हम जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं वो टॉपिक का मतलब नहीं पता अपने को। सौरभ तुम बताओ, तुमने भी आज कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है? सुनील जी पूछिए सौरभ से। सौरभ, आर यू देयर? सौरभ, आर यू देयर? Hello. हाँ सौरभ, आर यू देयर? Yes, sir. Can you hear me? What is a renewable energy? So which are naturally replenished? Naturally replenished. Yeah. क्या मतलब Like होता है sunlight, इसका? like so sunlight, wind, rain. Now, थर्मल पावर एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी है? Yes, sir. It is. what is thermal power? अभी Thermal power क्या होता है? Can you share your thoughts on that? सुनील भाई देखो, सबको यही नहीं पता कि रिन्यूएबल एनर्जी क्या है। देवेश तुम बताओ क्या है रिन्यूएबल एनर्जी? अनम्यूट करके बोलो। जैसे रिन्यूएबल सोर्सेज जो होते हैं, हीट, विंड, वाटर, उससे जो एनर्जी बनती है सर, वो रिन्यूएबल एनर्जी होती है। थर्मल पावर एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी होती है? यस सर। हाँ यस सर। किसी ने भी कुछ देखो, मेरे सुनील भाई मतलब मैं तो बहुत डिसअटेंड हूँ, मतलब हम इतना ज्ञान बांट रहे हैं मगर रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब ही नहीं पता फोरम में। भैया, my mistake. I think I should have started with this. आशुतोष तुम बताओ रिन्यूएबल एनर्जी। आशुतोष रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है? आशुतोष है ही नहीं। Ashutosh is there, but योगेंद्र रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है? रिन्यूएबल एनर्जी होता है जो नेचुरल सोर्सेज से जो एनर्जी कलेक्ट की जाती है, लाइक विंड हो गया, आपका वाटर हो गया, ये सब रिन्यूएबल एनर्जीज में आते हैं। वही होता है। आपका जो सेकंड क्वेश्चन है थर्मल रिन्यूएबल है कि नहीं, सही तो बोला है। थर्मल रिन्यूएबल नहीं है क्योंकि कोल और उससे कोल से प्रोड्यूस होता है, इसलिए थर्मल नहीं है। तो क्या बोले, थर्मल एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी नहीं होता है? नहीं, जो कोल से आपका आता है ना, कोल और ये मेरा क्वेश्चन ये है कि थर्मल एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी है कि नहीं है? तुम बोल रहे नहीं है। नहीं, सोलर जो आता है वो रिन्यूएबल में आता है। अरे भाई, थर्मल वाला रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है क्या? थर्मल, मैं रिपीट कर रहा हूँ, थर्मल एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी है कि नहीं है? थर्मल किस कोल से जो आता है कैसे आता है ये बताओ। मैं तुमको बताऊं क्या थर्मल कैसे प्रोड्यूस होता है, थर्मल एनर्जी? हाँ, नहीं, थोड़ा बताएंगे तभी हम बता पाएंगे। अरे तुमको अभी ये नहीं पता कि थर्मल एनर्जी किसको कहते हैं? नहीं, हमें तो लगता है कि कोल से जो प्रोड्यूस होता है या थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं। चलो मैं ये मान ले, मैं तुमको ये पूछता हूँ, कोल से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो रिन्यूएबल एनर्जी होती है नहीं होती है? नहीं, वो रिन्यूएबल। सोच के आंसर देना।
नहीं, जितना आता है उतने ही बताएंगे ना, सोचना क्या हाँ, इसमें नहीं आता है। तो रिन्यूएबल एनर्जी नहीं होती है वो? नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? अब क्यों मुझे नहीं पता भैया। मैंने याद किए हुए हो? याद क्या है, जितना आता है उतने बताया भैया, मैं याद नहीं किया। सुनील जी, आप कैरी ऑन कीजिए। पहले तो आप इन लोगों को रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बताइए। रितु जी कुछ बोलना चाहती थी, रितु जी को पूछो। रितु जी आप बताएं। आप सर जो थर्मल एनर्जी है, इट कैन बी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल बोथ. अच्छा, कैसे? It is if yes sir, if it is derived from the coal, which it is non-renewable because we can't get the fuel back which is got burnt, so it is non-renewable. But if we get the thermal power from the sun, it is renewable because sun is there and we can get it back. सुनील जी आप बताएं। रितु जी सही है? यस सर, रितु जी का conceptually she is right. Wherever in renewable, what we mean as a renewable is not only the pure renewable energy. If we see since beginning, I am saying we have covered around 7 categories of sources of energy which are considered as renewable. 3 are natural resources, like wind, hydro, and the solar energy, which don't get depleted by use when we convert that energy into electrical energy. But then there are other sources which are basically the waste, which is converted into as a source of energy. Otherwise, they will be degrading the environment. तो wind, जिसको भी नहीं समझ में आए फिर से पूछिएगा। इंग्लिश में नहीं समझ में आए, हिंदी में मैं फिर से बता देता हूँ। जो 3 नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे विंड, हाइड्रो और सोलर्स, जो सन से हीट आ रही है उसको हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। हाइड्रो में जब पानी का वेग होता है, उस पानी के वेग को एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। सिमिलरली विंड की जो वेग होता है, विंड की जो स्पीड होती है, उससे हम एक टरबाइन चलाते हैं, विंड मिल चलाते हैं, फैन चलाते हैं, जो कि एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो जब हवा ज़्यादा तेज चलती है, आप लोगों के पास, आपने शायद कभी बचपन में एक पंखा सा देखा होगा, जो कागज़ का पंखा होता था, जो घुमा के रख लेते थे, जब हम उसको भागते थे तो वो घूमता था। उसी टाइप का पंखा यूज होता है विंड एनर्जी में। विंड एनर्जी से वो पंखा चलता है एंड देन दैट इज कन्वर्टेड इनटू द पावर, इलेक्ट्रिकल पावर। ये 3 सोर्सेज हैं, इसमें कोई डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स नहीं होता है, क्योंकि रिसोर्स एज इट इज रहता है। उसका जो एनर्जी इनसाइड एनर्जी है, दैट गेट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक और सोर्स है, मैं आपको दो सोर्स और हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बट दे आर नॉट कवर्ड हियर बिकॉज वो बहुत ज़्यादा अभी तक डेवलपमेंट स्टेज में नहीं है। वन इज टाइडल वेव। टाइडल, जब आप टाइड जाते हैं तो अगेन एक एनर्जी होती है विच इज कन्वर्टेड इनटू पावर। सिमिलरली जियोथर्मल, जब जमीन की जो गर्मी है उसको हम हार्नेस कर लेते हैं और उससे हम कन्वर्ट कर लेते हैं अपनी, उसको हम पावर में यूज कर लेते हैं। बट मेरा पॉइंट यहाँ पर जो हमारा कवर करना था इन 7 सोर्सेज में, कि विंड, जो विंड से चलती है प्लांट्स, जो हमारे पानी से, फॉर एग्जांपल अब एक पानी का फॉल है, वाटरफॉल है, उस वाटरफॉल को हार्नेस करके एक टरबाइन पे गिराते हैं और उससे हम अपना टरबाइन चला के पावर जनरेट कर लेते हैं। उसमें पानी का कोई नुकसान नहीं होता है। एनवायरनमेंट का कुछ नुकसान होता है which I have discussed in my previous discourse। और तीसरा था ये, जैसे आपको बताया कि सोलर, जिसमें कोई डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स नहीं है, दे आर एक्चुअली रिन्यूएबल। बाकी जो सोर्सेज हैं लाइक नॉन फ्यूसल फॉसिल फ्यूल को जनरेशन,
म्यूनिसिपल वेस्ट, बायोमास, बायोगैस, ये 4 सोर्सेज जो हैं, ये सोर्सेज वो हैं जो कि अदरवाइज हमारे लिए वेस्ट हैं और हमारे ये जो एनवायरनमेंट है उसको डिग्रेड करेंगे। जब ये पड़े रहेंगे तो इसको कन्वर्ट कर लिया हमने एक और एनर्जी सोर्स में, क्योंकि हमारी एनर्जी सोर्स की हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, तो उस एनर्जी को की रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए हम इन सोर्सेज को कन्वर्ट कर लेते हैं विदाउट बेसिकली वन वे आई एम हेल्पिंग द एनवायरनमेंट टू सस्टेन। दूसरा ये है कि वो मेरे को जो ऑल्टरनेटिव मेरे को इसका यूज ऑल्टरनेटिवली मेरे को कोई फॉसिल फ्यूल जलाना पड़ता था वो उससे मैं बच जाता हूँ, तो इट इज अ ट्विन एडवांटेज। अब यदि कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछें कि भाई क्या है, तो रिन्यूएबल दो इट इज नेम्ड एज रिन्यूएबल, बट 3 चीजें इसमें रिन्यूएबल हैं, बाकी चीज रिन्यूएबल नहीं है, वो बेसिकली वेस्ट को कन्वर्ट हो जाते हैं। थर्मल में बेसिकली जो फॉसिल फ्यूल से बेस्ड जो हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं लाइक गैस, नाफ्ता, डीजल, कोल, लिग्नाइट, ये सब चीजों से ये फॉसिल फ्यूल हैं, ये धीरे धीरे डिप्लीट कर जाएंगे जब हम यूज कर लेंगे। इनके रिजर्व्स हैं, एक पर्टिकुलर डिफाइंड रिजर्व्स हैं हमारे पास, ये धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, तो ये रिन्यूएबल इसलिए नहीं कहलाते हैं और फॉसिल फ्यूल हैं। नंबर 1 ये खत्म हो जाएंगे। दूसरी बात, इनसे नुकसान ये होता है कि एनवायरनमेंट को इनसे काफी नुकसान रहता है। ये जो इनके अंदर गैसेस होती हैं लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये छोड़ते हैं जब आप इनको जलाते हैं, तो उसकी वजह से एनवायरनमेंट को नुकसान होता है। इसलिए आज की तारीख में प्रेफरेंस आ रहा है कि जहाँ पर एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो सोर्सेज हैं उनको यूज किया जाए। तो मैं आपको शुरू से बता रहा था। यदि कोई चीज की क्लैरिटी नहीं है तो आप मेरे से पूछ लीजिए प्लीज। देवेश जी, अब आपको मतलब कुड आई क्लैरिफाई कि एग्जैक्टली क्या है रिन्यूएबल और क्या डिफरेंस है दोनों में, थर्मल में और जो हम जिसको थर्मल प्रोजेक्ट प्लांट कहते हैं और रिन्यूएबल प्लांट्स कहते हैं? सबको समझ में आ गया रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है? किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? रिंकी, आपको समझ में आया कि मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। बताइए मेरे को जरा डिफरेंस बिटवीन कि मैं एक जगह सोलर थर्मल लिख रहा हूँ और दूसरी तरफ थर्मल को मैं कह रहा हूँ रिन्यूएबल नहीं है, तो ये सोलर थर्मल क्यों रिन्यूएबल है और थर्मल क्यों रिन्यूएबल नहीं है? थर्मल तो इज डिराइव्ड फ्रॉम कोल। आप कहीं से आपके पास कोई और स्पीकर लगा हुआ है, जरा से देखिए। आप ये देख रहे हैं मेरी एक जो स्लाइड खुली हुई है उसमें सोलर थर्मल लिखा हुआ है एक। यस सर। सर थर्मल तो क्लियर है कि इट इज डिराइव्ड फ्रॉम कोल एंड कोल इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, तो वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। एंड सोलर थर्मल आई एम नॉट श्योर। Can anybody tell what is solar thermal? So thermal energy is basically the conversion of heat into electricity. आप अपना थर्मल एनर्जी नॉर्मली डिपेंड ऑन द बेसिस ऑफ द फ्यूल दैट वी आर यूजिंग। कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट में अपना कोल एनर्जी यूज करते हैं। सोलर थर्मल प्लांट्स में हम अपने जो हीट के जो सोर्स है वो सोलर पावर को यूज करते हैं, सोलर एनर्जी को। नहीं तो आयुष देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोलर पीवी, सोलर थर्मल एंड फ्लोटिंग? क्योंकि तीनों तो सोलर से ही आ रहा है। हाँ, और तो तीनों उसकी हीट को ही कन्वर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। आपने क्या बोला सर, किस किस में डिफरेंस बताना है? देखिए ना, मैंने आप यहाँ पे देखिए, अभी आप देखें जो स्लाइड खुला हुआ है उसमें लिखा हुआ है सोलर पीवी, फोटोवोल्टिक, सोलर थर्मल एंड फ्लोटिंग। 3 तरह के ये सोर्स लिखे हैं यहाँ पर सोलर में।
क्या तीनों में डिफरेंस, मतलब क्या थर्मल, एक में थर्मल पावर, थर्मल एनर्जी यूज होती है, दूसरे में कुछ सोलर की, कुछ सन की कुछ और एनर्जी यूज होती है, तीसरे में कुछ और ही एनर्जी यूज होती है भैया? नहीं सर, तीनों में सर अपनी सोलर एनर्जी ही यूज हो रही है। सोलर पीवी बेसिकली अपना लैंड पे जो आपके प्लांट्स लगे होते हैं उसको बोलते हैं। सोलर फ्लोटिंग अपना जो वाटर के ऊपर आप प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो उसके मॉड्यूल्स होते हैं, उसको सोलर फ्लोटिंग प्लांट बोल देते हैं हम। और सोलर थर्मल में हम आई हैव अ लिटिल बिट कंफ्यूजन कि हम सोलर के साथ साथ क्या कोल एनर्जी भी यूज करते हैं या सिर्फ सोलर यूज करते हैं? नहीं, इस केस में मैं आपको बताता हूँ, सोलर थर्मल बेसिकली क्या होता है कि आप सोलर एनर्जी से पानी गर्म करते हैं एंड देन यू जनरेट पावर फ्रॉम दैट हीटेड वाटर। तो आप क्या कर रहे हैं कि सोलर पानी आपने गर्म करा और पानी गर्म करके उससे स्टीम जनरेट करके देन यू आर जनरेटिंग पावर इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली फ्रॉम सोलर पैनल। तो वाटर हीटिंग के लिए यूज किया जाता है मोस्टली सोलर थर्मल। हाँ जी, या तो वाटर हीटिंग के लिए यूज किया जाता है सोलर थर्मल। नॉर्मली वाटर हीटिंग के थ्रू उसका स्टीम जनरेट करके सोलर थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स उसको, मतलब इट इज नॉट डायरेक्टली सोलर की जो एनर्जी है, जब पीवी आप बनाते हैं तो वहीं से आप सीधे सीधे एनर्जी जनरेट कर लेते हैं, पावर जनरेट कर लेते हैं। वो डीसी करंट में पावर होता है, डीसी करंट से उसको ऑल्टरनेटर से मैं अभी स्लाइड में दिखाऊंगा कि कैसे कन्वर्ट होता है, फिर वो ग्रिड में जाता है, क्योंकि नॉर्मली एसी करंट आपका कन्वर्ट होता है। लेकिन सोलर थर्मल में वही जो पावर है उसको एज इट इज, उससे हमको हीट से वो जनरेट कर लेते हैं स्टीम, और स्टीम से फिर पावर जनरेट करते हैं। Yes, sir. तो सोलर फ्लोटिंग सर? फ्लोटिंग में जो सोलर वो सेम है, सोलर पीवी है, बस ये है कि वो लैंड के ऊपर है, वो हमारे Rooftop पे। रूफटॉप पर नहीं है, बल्कि वो आपके इस पर हैं, जैसे पानी पे? पानी के ऊपर लगा दिए। तो पानी पे लगाने से क्या हुआ है कि आपके जो दो फायदे उससे होते हैं। एक तो डस्ट, मतलब आपका पानी थोड़ा कम पोल्यूट करता है, जो खुले में रखा हुआ है, ऊपर से जो कोई भी पोल्यूटेंट गिरता है वो कम गिरता है। लेकिन दूसरा इससे सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो खुला हुआ है और आपके पास, आपने लैंड जो बहुत कॉस्टली लैंड है आप उससे बचा लेते हैं। लेकिन सर सोलर थर्मल और फिर कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट में क्या डिफरेंस हुआ सर वर्किंग के कोल अंदर? बेस्ड में आपको स्टीम जनरेट करा आपने कोल जला के, और सोलर में हमने पानी को गर्म करके हीट जनरेट किया। पानी बट हुआ को तो मेरा सोलर ही ना। सोलर एनर्जी से गर्म किया। हाँ ठीक है, वो तो फाइन है सर। आपका एक में क्या हुआ, टरबाइन, दोनों में टरबाइन जला, लेकिन टरबाइन एक ने टरबाइन चलाया सोलर की पावर को हार्वेस्ट करके, दूसरे वाले में कोल जला के आपने स्टीम जनरेट करी। फाइन सर, ठीक है। ठीक है, विंड में विंड टरबाइन आपका चलता है, तो विंड टरबाइन आपके विंड से टरबाइन चलता है। सोलर एनर्जी में अदरवाइज टरबाइन नहीं चलता। जैसे स्मॉल हाइड्रो में अगेन टरबाइन चलता है, टरबाइन के ऊपर पानी, ब्लेड्स के ऊपर पानी गिराया जाता है उस एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से, वो वेलोसिटी से टरबाइन चलता है। तो टरबाइन को आप 3000 आरपीएम पर लेके जाते हैं टू जनरेट दैट 50 जो आपकी वो होती है ये एसी का साइकिल जो होता है पावर का। तो सर इसमें जो भी मेरे पावर प्लांट्स हैं, लाइक अपना सोलर थर्मल ले लो, आप सोलर पीवी ले लो, विंड ले लो, इसमें कंप्लीटली मेरे नेचुरल होते हैं या इसमें मेरे को कोई एक इनपुट इलेक्ट्रिसिटी भी देनी पड़ती है टू सम एक्सटेंट? नहीं, इनमें आपको नहीं देनी पड़ती कोई इलेक्ट्रिसिटी। ओके। हाँ, ये अपने मतलब ये कंप्लीट नेचुरल है। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे अब आपको रात में, मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि वैसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं जरूरत है, लेकिन मेंटेनेंस वगैरह के टाइम में आपको कुछ पावर की जरूरत है तो वो ड्रॉ करनी पड़ती है। वो तो बैटरी से ड्रॉ हो जाती होगी ना सर शायद? कैसे भी आप ड्रॉ करें, चाहे वो बैटरी से ड्रॉ करें, कोई सोर्स से आपको वो पावर जरूरत पड़ती है मेंटेनेंस के टाइम में, या आपको रात को लाइटिंग करवानी है, जिसके आप ऑक्सिलरी कंजम्पशन कहते हैं, उस समय आपको नहीं है, जब जनरेट नहीं हो रहा है, लेकिन आपको जरूरत है उसको सेफ्टी वगैरह के लिए, वो बहुत माइनर है, बट दैट इज प्योरली एक्सपेंडिचर कंजम्पशन, दैट इज नॉट, मतलब कंजम्पशन इंटरनल कंजम्पशन नहीं है। जैसे थर्मल पावर प्रोजेक्ट में इंटरनल कंजम्पशन पावर की बहुत सारी होती है, आपको उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ही होती है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो लॉट ऑफ मोटर्स आर बीइंग ऑपरेटेड, तो उसके लिए आपको पावर की जरूरत होती है। लॉट ऑफ फैंस आर बीइंग ऑपरेटेड, उसके लिए पावर की जरूरत होती है। तो आप देखेंगे कि उनमें ऑक्सिलरी पावर, इनमें भी बाकी जैसे बायोमास, बायोगैस, इन सब में पावर की जनरेशन होती है, रिक्वायरमेंट होती है, विच इज कॉल्ड ऑक्सिलरी पावर कंजम्पशन।
तो सोलर और विंड में अपने को ऑक्सिलरी पावर कंजप्शन की जरूरत नहीं होती, नहीं होती है। नेग्लिजिबल अमाउंट सर। हाँ, वो नेग्लिजिबल जो अमाउंट छोड़ दीजिए उसको, अदरवाइज नहीं होती। इट इज कंसिडर्ड कि जितनी पावर जनरेट होती है वो सब सेल हो जाती है। उसमें जो लॉस होता है वो बिकॉज ऑफ द ट्रांसमिशन लॉस जो रहता है वो थोड़ा मोड़ा कन्वर्जन लॉस और ट्रांसमिशन लॉस रहता है, क्योंकि डीसी से एसी कन्वर्ट होती है तो वो थोड़ा सा कन्वर्जन लॉस रहता है। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि पावर प्लांट को चलाने के लिए कोई पावर की मेरे को जरूरत तो नहीं होती इलेक्ट्रिसिटी की नहीं, मैं यही बोल रहा हूँ कि आपको सोलर, विंड और हाइड्रो में नहीं होती है, लेकिन बायोगैस, बायोगैस जहाँ भी फ्यूल आप जनरेट कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे को जनरेशन के प्लांट है, बगास वाला है, बगास वाले प्लांट में आपको जरूरत रहती है। ऐसे ही आपको पास बायोमास, बायोगैस, सॉलिड वेस्ट, इन सब में थोड़ी थोड़ी जरूरत रहती है, जिसको ऑक्सिलरी पावर कहते हैं। ठीक है सर। मेगावाट क्या होता है, किसी को पता है? व्हाट इज मेगावाट? आयुष, कैन यू टेल मी व्हाट इज मेगावाट? डेफिनेशन तो नहीं पता। हम हर जगह यूज करते हैं मेगावाट। सर पावर मेरी नॉर्मली किलोवाट, मेगावाट में मतलब मेगावाट, यही तो पूछ रहा हूँ। जैसे आपने कहा किलोवाट बोला आपने, व्हाट इज किलोवाट? चलिए, एग्जैक्टली नहीं पता सर मेरे को कि मैं उसको कैसे डिफाइन करूंगा। व्हाट इज द एक्सप्लेन किए गए थे और उसके लिए तो उन्होंने बोला ही नहीं था कि मेथड एक्सप्लेन करने हैं, वो मतलब अलग ही थॉट प्रोसेस लिख दिया गया था सेकंड टाइम वो आर्टिकल, तो वो उनका फीडबैक वो दिया था। WATT, what is the measure of energy in electrical energy? Kilowatt is 1000 watt is kilowatt, megawatt is 1 million, 1000 into 1000 is a megawatt. Because normally the plants, the commercial plants are large size plants, so instead of using 1000 kilowatt, normally we are using megawatt. And recently, because again, even as I told you, my capacity is 89,000 megawatt. Now we have started using 89 gigawatt, which is again 1000 megawatt is a gigawatt. So megawatt is basically the unit of measuring power. Watt is the measuring of unit of power, but mega is million, kilo is 1000 as you did, giga is again. It's as simple as that. Whatever you have a capacity of your this secure this computers or storage, megabyte, kilobyte, megabyte, gigabyte. Is it same? Exactly same. Kilobyte, megabyte, gigabyte. Is it not? We are using these terms for our capacity. कि भाई 5 MB का मेरा capacity है, 10 MB का मेरा pen drive है. What is 10 MB? 10 megabyte. Is it not? बिल्कुल सर वही है सर. Same, exactly the same word we are using as megawatt. हाँ जी. Because we are normally क्या होता है कि हम लोग इतना MB को इतना अच्छे से यूज करते हैं तो हम मेगा भूल जाते हैं कि there is a word mega or which we are using here. I'm sorry कि I thought कि ये थोड़ा conceptually शायद पता होगा इसलिए नहीं सर, बट भूल गया मैं, बहुत समय पहले किया था. अब जैसे अब कोई बताएगा what is biogas plant before going forward? Let me, because then I will be asking a lot of questions into this. So biogas plant is where biogas is produced by fermenting biomass. Anybody else? Ma'am, you are right. I'm not saying you are incorrect, but I just want to try to get explain. आप कोई example देके बताएंगे please? Such just like any energy like corn or waste material such as food waste, this also allows the biogas to rise more easily. So we can derive the gas from the plant and generate biogas.
एब्सोल्युटली राइट मैम। जैसे अपने मैं बहुत बड़ा एग्जांपल आपको दूं तो आप यदि आप कुछ टाइम पहले देखेंगे तो द सीवेज एंड दिस व्हाट वी वर यूजिंग द काउ डंग, Yes, sir. which is a very good source of biogas. Okay. This type of sources are used to generate gas. उससे क्या दो फायदा होते हैं, एक तो ये होता है कि काउ डंग को जब आप बायोगैस आप उसका निकाल लेते हैं, उसमें मीथेन निकल जाती है, तो वो दैट बिकम्स अ मैन्योर, तो वो मैन्योर आपके के लिए यूज हो जाती है, and that is where it becomes a renewable energy, because what is happening, you are actually using the entire chain of material, whatever is generated naturally, and then you are using it, you are using to generate further thing. तो आपने इधर गैस यूज करा, गैस यूज करके आपने एनर्जी जनरेट कर ली, उधर मैन्योर बना, मैन्योर से आपने फिर से आप एक नेचुरल प्रोड्यूस यूज बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप वहां से क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, एंड दैट क्रॉप अगेन उसका उस क्रॉप का जो रेजिडुअल है वो फिर आप कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं बाय एज ए कैटल फीड और व्हाटएवर वे यू आर यूजिंग, सो दैट तो एक्चुअली यू आर यूजिंग द एंटायर चेन ऑफ मटेरियल एक्सेप्ट फॉर सम वेरी स्मॉल वेस्ट। सिमिलरली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट म्युनिसिपल और सॉलिड वेस्ट, जब हमारा ये म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट नॉर्मली खाने की आइटम्स रहती हैं या पेपर या इस तरह की आइटम रहती हैं, तो आप जब इसको यूज कर लेते हैं एक सॉर्ट ऑफ एनर्जी में, तो जो बाकी बचा हुआ राख है वो बहुत थोड़ी सी रह जाती है, विच इज एक्चुअली वेस्टेड। अदरवाइज क्या हो रहा है कि बहुत साइजेबल अमाउंट ऑफ वेस्ट जाता है जो कि प्रोसेस नहीं हो पाता। दैट्स व्हाई इट इज अगेन दीज आर नॉर्मली कवर्ड अंडर रिन्यूएबल सोर्सेज। So that this type of biogas plants are profitable. मैम एज आई टोल्ड यू कि ये छोटे नॉर्मली बहुत छोटे रहते हैं प्लांट्स, बट प्रॉफिटेबल रहते हैं, क्योंकि आपके पास जो वेस्ट है वो आप उसको यूज कर लेते हैं In different forms. हाँ, इन डिफरेंट फॉर्म्स। मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल बताऊं, अभी आपने लर्न, अभी आप पराली जलाते हैं ना, Yes, पराली जलाने से आपको यहाँ नुकसान हो रहा है, अब जला तो आप रहे ही हैं, इसी को यदि मैं को जनरेशन में यूज करूं या इसका मैं बायोगैस बनाना शुरू करूं या बायोमास करके के यूज करूं, ये तीनों चीजों से मैं यूज कर सकता हूं इसको, अगेन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसिंग करके। एक ये है कि मैं उसको गड्ढे में डाल के उससे गैस जनरेट करूं बाय पुटिंग सम मैन्योर। दूसरे में ये है कि उसको एज इट इज अपने जो मेरा प्लांट उसमें जो पराली है उसको मैं एज इट इज फीड कर दूं अपनी पावर प्लांट में टू जनरेट हीट एंड देन टू जनरेट स्टीम फॉर जनरेटिंग पावर। तो these are the uses, and basically उसको आप in any case जला रहे हैं, they are profitable in the sense कि उसका उसी हिसाब से टैरिफ लिया जाता है। आप यदि देखेंगे तो आप इसका कॉस्ट कुछ नहीं आता, 5-5.5 रुपए का आता है, 6-6.5 करोड़ रुपए पर मेगावाट, लेकिन बायोगैस का प्लांट बहुत महंगा आता है, क्योंकि उसका अगेन उसमें आपको बहुत स्पेस ज्यादा जरूरत होती है टू क्रिएट गैस एंड टू स्टोर गैस। आप यदि देखेंगे तो यहाँ पर 11.5-12 करोड़ रुपए पर मेगावाट का कॉस्ट है, और उनका O&M कॉस्ट भी बहुत करीब 60 लाख रुपए पर मेगावाट का O&M कॉस्ट पर एनम उसको अलाउ करता है। Yes, sir. Yeah. Okay. Then I will just like to share a very schematic diagram that I have just tried to generate is the solar panels। यहाँ से हीट रेडिएशन होता है, हीट रेडिएशन से ये पैनल एक डायरेक्ट करंट DC बनाते हैं। Can anybody told what is the difference? Why I'm saying DC and alternative current, or what is direct current and alternative current is something which normally when we are assessing a project or when we are doing a project study, there is an alternator which is required. Why it is required? So what is the difference between DC and AC? थोड़ा टेक्निकल है, मैं जस्ट कोशिश करता हूँ आप लोगों को बताने का। डीसी में क्या होता है कि डायरेक्ट करंट का जो लाइन होता है वो प्लेन सिंपल होता है, वेरएज ऑल्टरनेटिव करंट का जो साइकिल होता है वो पॉजिटिव 0 नेगेटिव पॉजिटिव 0 नेगेटिव मतलब ऑसिलेटिंग साइकिल रहता है, which is normally used in all the equipment that we are using, except for heavy duty equipment which use DC because they require continuous current. So in DC there is a continuous flow,
And sir, this flow is into only one direction. Yeah, this is into only one direction. Okay. तो आपके जैसे हेवी ड्यूटी मोटर्स होते हैं दे एक्चुअली गेट दे यूज डीसी, और या फिर आप देखेंगे कि दे आर यूजिंग थ्री फेज एसी. यदि आपने सुना होगा थ्री फेज एसी क्यों होता है कि जो आपके पास जो ऑल्टरनेट का एक ऊपर से नीचे जाने का जो साइकिल है उसको वो कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, क्योंकि 3 फेज आ जाते हैं उसमें. ओवरऑल टाइमिंग गैप रिड्यूसेस, तो उससे एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ जाती है उस यूनिट की. सिमिलरली डीसी में क्या होता है कि लॉस ऑफ पावर बहुत ज्यादा रहता है, बिकॉज ऑसिलेट नहीं करता, तो यदि आप ट्रांसमिट करते हैं तो लॉस ऑफ पावर बहुत ज्यादा रहता है. Okay. सर सोलर प्लांट के अंदर अपना डीसी एसी का कंसेप्ट क्या होता है सर? सोलर प्लांट जब पैनल जो जनरेट करता है वो डीसी जनरेट करता है, डायरेक्ट करंट जनरेट करता है. जैसे आपकी बैटरी जो होती है वो डायरेक्ट करंट जनरेट करती है. जो आप सेल यूज करते हैं, जो आप फॉर एग्जांपल अपने फोन्स में या जो यूज करते हैं, वो डीसी करंट होता है, वो एसी करंट नहीं होता. मैं कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ. फॉर एग्जांपल मेरे को सेकी से 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट अलॉट हुआ, तो नॉर्मली पीपल यूज्ड टू कंसीडर कि डीसी एसी रेशियो करके वो 130 मेगावाट का ऑन एक्चुअल कैपेसिटी लगा देते हैं ग्राउंड पे. ये मेरे को देखना पड़ेगा, मेरे को इसका आइडिया नहीं. मेरे को आई विल कम बैक ऑन दैट, आई एम सॉरी फॉर दैट. डीसी एसी रेशियो मेरे को देखना पड़ेगा. Thank you, Ayush. Let me go through and I will come back. अभी मेरे से किसी ने पूछा था कि 2 रुपये 44 पैसे या 2 रुपये का क्या टैरिफ है. अब आप देखिए, मैं आपको एक बिल्कुल ये बिड जो हुई है, ये बाकायदा मैं बिड का डॉक्यूमेंट आपको दे रहा हूँ. 2010 में टैरिफ 12 रुपये 16 पैसे था. 2015 में आके 4 रुपये 63 पैसे पे बिड हुआ, सन एडिसन ने बिड किया. एंड अभी सोलर एक एक्मे ने 2 रुपये 44 पैसे करा है मई 17 में, और अभी जून 20 में 2 रुपये 36 पैसे का बिड आया हुआ है. See the tariff which has gone down. What does it mean? It means somehow there are more efficient units have come up. Second is the cost of technology has come down because of the heavy use or high use. The cost of project has come down. Previously, the cost of project, as I was telling, something like 16 crores per megawatt or 18 crores per megawatt, which has come down to 3 crores per megawatt now. In 2008, when we were setting up a project, it was something like 18 crores per megawatt. I was working on a project which was costing around 16 crores per megawatt in 2010. Now, as we are sharing, it is around 3 crores. But again, the sustainability at 2 rupees 36 paise has to be seen. How this tariff is sustainable. Sir, there are many reasons कि जो 2 रुपए 36 पैसे पे जो लो बिड जा रही है ना अपनी जी. सर, अपना एक और एजेंडा भी निकल के आ रहा है कि प्रोमोटर्स आज की तारीख में O&M के अंदर पैसा निकाल लेते हैं अपना, और जो पहले टियर 1 पे अपना मॉड्यूल्स खरीदते थे, आज की तारीख में टियर 2 खरीदने की वजह से उनकी कॉस्ट भी बहुत रिड्यूस हो गई है टू सम एक्सटेंट. इसका मतलब 2 चीजें हैं आयुष, एक बार ध्यान समझ के चलिएगा. इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि या तो प्रोमोटर शॉर्ट टर्म देख रहा है कि भाई जब लॉन्ग टर्म में जाएगा तो वो जो लेंडर है, क्योंकि 70% प्रोजेक्ट का जो पैसा है वो लेंडर ने लगाया हुआ है, या 80% प्रोजेक्ट लेंडर ने लगाया हुआ है, तो वो जाने उसका काम जाने वाला केस है. इज इट नॉट? इफ यू आर सेइंग कि यदि आपका थर्मल एफिशिएंसी नहीं आएगी, क्या वेदर इट इज प्रूवन, जो एफिशिएंसीज आई हैं क्या वो प्रूवन है इंडिया के कंटेक्स्ट में? बिकॉज इंडिया इज अ कंट्री वेयर लॉट ऑफ डस्ट इज देयर, और एक बार डस्ट का एक लेयर यदि आपके पास सोलर पैनल पे आ जाता है तो यू नीड टू रिमूव इट बाय वॉशिंग और समथिंग. सो वो तो O&M का नहीं है, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि वहां O&M का खर्चा बढ़ जाता है. और सिर्फ आप खुद सोचिए कि सोलर फार्म जहां पर 5,000 एकड़ 10,000 एकड़ पे फार्म लगा हुआ, उसकी O&M कॉस्ट कितनी बड़ी, मतलब कितना साइजेबल O&M खर्चा करना है उसको टू मेंटेन दैट प्लांट. मेरा पॉइंट सिंपल यही है कि अगेन 2
That's why I'm saying कि the market may be inefficient in some cases. Normally market will be efficient. और उसके बाद के जो बिड या उसके बीच में जो बिड आए थे, ये ₹2.44 और ₹2.36 में, उसमें ₹3.20 के भी बिड आए हुए हैं. अभी रिसेंटली यूपी ने अलॉट करा ₹3.20 पर. पहले क्या ट्रेंड था सर, जब अपना ये अपना ₹7 का रेट चल रहा था, 5 का रेट चल रहा था, उस टाइम पे मेरे ईपीसी प्लेयर्स काफी हद तक अलग होते थे, आईपीपी प्लेयर्स अलग होते थे. बट अब क्या ट्रेंड है सर, मेरा ईपीसी और आईपीपी दोनों एक ही हो गए. वो इन हाउस ईपीसी अपना कमीशनिंग करते हैं और 55% ऑफ द टोटल जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो ईपीसी कंट्रीब्यूट करता है. तो सारा प्रॉफिट तो शुरुआत में ले जाता है कमीशनिंग के टाइम पे. मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन इसमें एक चीज याद रखिएगा कि यदि आपका ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट ओवरऑल अल्टीमेटली ओवरऑल आईआरआर मैं आपकी बात मान लेता हूं, और यही वजह है कि बिड्स डेफिनेटली कॉम्पिटिटिव आए हैं, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से एक रिस्क रहता है, और यही एक रिस्क है विच व्हेन वी आर डूइंग आइदर टीईवी, व्हेन वी आर लुकिंग फॉर फाइनेंस, और व्हेनेवर वी आर रीस्ट्रक्चरिंग, वी हैव टू इंश्योर कि जो प्रोजेक्ट की वायबिलिटी है that is maintained, or because it should not go into restructuring later on. जब if we are making a TV report, शायद उस दिन पुष्पिता मैडम exactly यही चाह रही थी कि भाई आपको क्या क्या सब्जेक्ट देखने हैं, so that we are assured कि मेरे प्रोजेक्ट की viability, once I have given a viable project viability, then it retains, it is maintained over at least for actually it should be maintained over the life of the project, or at least till the time that entire debt is repaid. It is very important for us कि whenever a person has bid or has won a bid, we have to see कि with the project cost which he is saying that the project is viable even with under stress, because 1% 2% का आप ये समझ लीजिए कि आपका हेर फेर हो जाता है रेडिएशन में किसी भी वजह से, या आपका एफिशिएंसी कम हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज 25 years everybody has to see that this 25-year life. सर एक और क्वेरी थी सर, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि लेवलाइज्ड टैरिफ और अपना जो ओपन मार्केट में जो ओपन टैरिफ जाता है उनको डिटरमाइन ओपन मार्केट में टैरिफ मतलब आप जो कह रहे हैं करंट टैरिफ, जो आपका प्राइस मार्केट में एक्सचेंज पे प्राइस है. सर दो तरीके की बिडिंग होती है सर. एक तो सेकी एमएनआरई वगैरह जो करवाते हैं अपनी बिडिंग, कुछ लोग सेल्फ प्लांट भी लगा लेते हैं और वो ओपन मार्केट में अपना डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ट्रांसमिशन के थ्रू. हाँ, उसमें क्या होता है कि वो अपने स्टेट गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि भाई मैं तेरे को ₹2 में दूंगा, या जो ओपन मार्केट का रेट चल रहा होगा मैं तेरे को उस पे पावर दूंगा जहां भी डेफिशिएंसी होगी. मर्चेंट पावर जिसको कहते हैं हम. तो ओपन मार्केट और ये लेवलाइज्ड टैरिफ सेम होता है या नहीं? लेवलाइज्ड टैरिफ इज अगेन एज आई टोल्ड यू कि इट्स अ डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ द टैरिफ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. मान लीजिए मैंने आपका, मेरे लाइफ 25 साल का है, मेरा 25 साल का बिड मैंने मंगाया, सेकी ने मंगाया, तो आप 25 साल का आपने टैरिफ बिड करा, आप ये भी कर सकते हैं कि एक ही रेट पे बिड कर दें. हाँ जी, है ना? तो यदि आपने, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल आपसे पूछ रहा हूँ कि यदि मैंने सारे साल का टैरिफ ₹2.60 बिड कर दिया, सारे साल का, व्हाट विल बी माय लेवलाइज्ड टैरिफ? विल माय लेवलाइज्ड टैरिफ बी ₹2.60? कैन एनीबडी टेल? मैंने 25 साल का टैरिफ बिड किया ₹2.60, ₹2.60 फॉर ऑल 25 years. Will my levelized tariff be ₹2.60? No. Or more than that or less than that? I think more than that होना चाहिए, but concept नहीं पता सर clear. और कोई? किसी ने लेवलाइज्ड टैरिफ कभी नहीं, किसी प्रोजेक्ट का हमने रीस्ट्रक्चरिंग या किसी प्रोजेक्ट का हमने स्ट्रक्चरिंग नहीं, वो फंड रेज नहीं किया या टीवी रिपोर्ट नहीं बनाया. मैम पुष्पिता मैडम है क्या? पुष्पिता मैम नहीं आज. सर ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बराबर नहीं होगा, मतलब कभी नहीं बराबर तो नहीं होगा सर. नहीं, इक्विलिब्रियम आता है सर उसमें, बट वो उसमें टाइम लगता है सर. नहीं, मैं आपसे, मेरा फिर से क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ. एक 25 साल का टैरिफ मैंने दिया आपको, 25 साल का कोड दिया, ₹2.60 फॉर ऑल 25 years. ओके सर, ठीक है. लेवलाइज्ड टैरिफ मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ, इट्स डिस्काउंटेड रेट टैरिफ ओवर द लाइफ ऑफ बिड और
contract or whatever life of the project. Whether मेरा levelized tariff इस किस केस में जिसमें मैं 2 रुपए 60 पैसा पूरे 25 साल का सेम टैरिफ दिया, whether the levelized tariff will be more than 2 rupees 60 paisa, less than 2 rupees 60 paisa, or equal to 2 rupees 60 paisa. आप ही बता दो सर। रिंकी तुम बताओगी? अर्पिता आप बताएंगी? अर्पिता आर यू देयर? Arpita, she is not there. Okay, it will be lower than that. रीजन ये है कि आप डिस्काउंट कर रहे हैं. आप खुद सोचिए जो 25 वाला फिगर होगा वो 2 रुपीज 60 पैसे का कहीं जाके शायद हो सकता है, जब भी जो भी 10% या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% पे 8% पे 11% पे जो भी आप कम करेंगे, that will be something around 10% से यदि 25 साल में डिस्काउंट करेंगे तो जाके मेरे को लग रहा है कि 2 रुपए 3 रुपए 2 पैसा 3 पैसा आएगा, या हो सकता है 1 रुपया आए. तो it will always be less if I am bidding at the same price. क्या मैं am I making a sense? नहीं समझ में आया सर. आप एक एक्सेल फाइल में 2 रुपए 60 पैसे या 3 रुपए एक सिंगल फिगर को 25 साल डालिए, उसको 10 रुपए पे डिस्काउंट करिए, देखिए कि क्या वो फिगर 3 रुपए आती है, 3 रुपए आती है, 3 रुपए से कम आती है. Levelized tariff is average tariff of the discounted cash flows. NPV मैंने बोला था ना, NPV है प्रेजेंट वैल्यू है. हाँ जी. तो प्रेजेंट वैल्यू तो डिस्काउंट होगी. तो जैसे जैसे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपका टाइम बढ़ता जाएगा तो डिस्काउंट फैक्टर बढ़ता जाएगा भैया. जब डिस्काउंट फैक्टर बढ़ेगा तो जो डिस्काउंटेड अमाउंट है वो कम होता जाएगा एज द पीरियड गोज फर्दर. इज इट नॉट? सर बाद में समझूंगा सर, मेरे को अभी क्लियर नहीं हो रहा. मैं आपको मैं 1 मिनट में आपको यहाँ पर ही बताता हूँ. 1 सेकंड, आप सबको ही बताता हूँ क्योंकि व्हाई आई एम सेइंग सो. गिव मी अ सेकंड. Give me a second. I'll just put into perspective what I am saying. Okay, sir. I'm sorry, man. I was hoping that it will be a very short class. But I'm really happy कि Sudarshan भैया made it lively. See, these are the years which I am putting. Discount rate I am taking 10%. This 3 rupees that I am taking every year for 11 years. Or 10 years, let me do 10 years. What I will be discounting is आपको इसको because it is 0 years अभी आधे साल का ले रहा हूँ डिस्काउंट.
अब आप इसका लेवलाइज टैरिफ यदि आप लेते हैं, इवन मैं ये 3 रुपए मतलब यानी मैं 0 भी ले लेता है यहाँ पर, तो व्हाट इज मीन लेवलाइज टैरिफ, दो दिस इज नॉट द एग्जैक्ट फार्मूला, इसका एग्जैक्ट फार्मूला एक्चुअल वैल्यूज पर रहता है. आई एम जस्ट टेकिंग द फिगर्स for the purpose of, for the sake of, but it will be on the similar lines. The objective will be served. See, the levelized tariff comes to 1.93 पैसा, क्योंकि ये सारे कैश फ्लोज अब आप देखेंगे तो ये कम होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द डिस्काउंटिंग. क्योंकि यहाँ पर आधे साल का डिस्काउंटिंग है, यहाँ पर 7 साढ़े 6 साल का डिस्काउंटिंग है. Is it not? Yes, sir. What I was saying, though I have quoted 3 rupees, my leverage tariff is 1.93 rupee. Now, similarly, what I can do in order to maintain the same thing, I can do 5 rupee here and maybe 2 rupee here. See, practically I am making the same thing. So I am making more money here. So this type of juggling is being done by the promoters whenever they are quoting. And that is where it is very important that whenever a company is bidding, asking for a bid like SECI, they are asking to the levelized tariff. So that's why if whatever levelized tariff that I bid will not be the figure equal to every year. तो अभी सर अगर अब लेवलाइज टैरिफ प्रोमोटर देखता है तो सेकी के प्रोजेक्ट में क्या वो हर साल का अपना टैरिफ बताता है उसको, या फिर एक ही लेवलाइज टैरिफ को भी फिक्स करके बताता है? कोट वो एक करता है, लेकिन वो डिटेल पूरी देता है नीचे. मेरे हिसाब से मैं बिड डॉक्यूमेंट देखूंगा, मैंने बिड डॉक्यूमेंट नहीं देखा, यदि आप निकाल लोगे मैं देख लूंगा बिड डॉक्यूमेंट. मेरे हिसाब से उसको पीछे उसको ईयरली उसको फिगर बताना पड़ेगा, क्योंकि लेवलाइज टैरिफ डज नॉट मेक एनी सेंस. यदि मैं उससे कहता हूँ मैं 1 रुपए 93 पैसे लूंगा, एज आई टोल्ड यू, तो 1 रुपए 93 पैसे इज नॉट मेकिंग एनी सेंस, क्योंकि मैं पहले साल 1 रुपए 93 पैसे ले लूं, लेकिन दूसरे साल मुझे 1 रुपए 93 पैसे को ग्रॉस अप करना पड़ेगा कुछ, सो दैट इट डिस्काउंटेड वैल्यू इज 1 रुपए 93 पैसा. इज इट नॉट? तभी तो वो वेटेड एवरेज उतना का आएगा. हाँ जी. तो उसको ईयरली कुछ फिगर डिफरेंट होगी. ठीक है सर. ठीक है ना? Now, I've just compiled some projects where I have seen a waste to energy project which was costing around 16 rupee 34 crores, 16.34 crores per megawatt, whereas it was commissioned in 2016 and its tariff was 6 rupee 39 paisa levelized tariff. Now, in this case, we have seen that the cost is normally coming between this, but there is one project that I have seen in during my search when I was doing for the class. I saw that a project was costing like 35 crores per megawatt also, which was for which the DPR was prepared by one of the large consultancy firm. Similarly, in wind, we are seeing around 5 to 6 crores and the tariff is around 5 per unit. Again, this I could find in one of the APRC order. This is the APRC has Andhra Pradesh Electricity Regulatory Commission. Suo motu has determined this tariff. In solar, as we were seeing that there are bids, very competitive bids or very aggressive bids, but the project cost is between 3 to 5 crores, and the tariff is bid based and which is between 2.5 to 3 rupees. Why I have covered these three? Because in my if you see in this, these three are market driven as per market. For others the regulators are already given some benchmark. So whenever we are doing any assessment for TEV or for our restructuring or for our any fundraising that we are doing, and we are making a note and seeing the viability of a project, then I think for renewable projects, some highlights or some inputs I could give, and I will share with you the
regulation which has been passed by the Central Electricity Regulatory Commission recently in July 2020. I would request you to go through tomorrow is Sunday. It's a 39-page document. I would request everybody to go through it and ask questions, whatever questions you feel like. I'll try to reply to those questions in general forum so that everybody, or what I can do is I can compile maybe someday and share with you once I compile the questions and compile the answers as well. I'll try to share with everybody. In the meantime, I am over with it. Thank you very much. Thank you so much, sir. Are there any questions? I will try to answer them. So there is some kind of hybrid power plants also, no? Like solar. I missed solar that hybrid. portion. I missed that portion. That hybrid power plant, as I initially told you, see in windmills, whenever we are putting up windmills, they are into a distance. For example, 500 meter or 600 meter distance is required between one windmill and this other windmill. The entire space is vacant. So what we do is we put up solar plants in between, and then we sell a GED power. A mixed power is sold to the grid, is put into the grid, which are called hybrid plants. So these type of normally whenever there are two renewable energy plants, but the condition of regulator is if it is to be considered a hybrid plant, तो जो भी प्लांट है किसी भी सोर्स का, यदि मान लीजिए दो सोर्सेज है तो दोनों सोर्स में से किसी भी जो जिसकी मिनिमम कंट्रीब्यूशन है should not be less than 25%. तो एक मान लीजिए सोलर प्लांट है और एक विंड मिल है, तो विंड मिल का यदि कम कैपेसिटी है तो विंड मिल कम से कम 25% कंट्रीब्यूट करना चाहिए पावर को टू बी क्लासिफाइड एज हाइब्रिड प्लांट. Okay, thank you very much. I hope Thank you, sir. get some sense into it, and I will share my as I told you a regulation. मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा टेक्निकल है लेकिन आपको लगेगा एक बार पढ़ने के बाद, पर्टिकुलरली जो पीपल हु आर इनटू these three execution areas, it will be very, very helpful. It is coming regularly, every 3 years or 4 years it is coming. So in our assessment, we should go through those documents whenever we are actually encountered with any project which is power project. Thank you everybody for bearing with me.